Good evening, students. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, let's start with the topic politics of education today. First one is in this syllabus you can find that there are very few topics related to the relationship between politics and education, then the perspectives of politics of education, and under this perspective you will find liberal, conservative, and critical. Then approaches of understanding politics, that is behaviorism, theory of system analysis, and theory of rational choice. The last one is education for social development, I mean socialization and political development. Okay, so this is a topic again. I repeat that these are the topics very relative, and you can find questions directly. Okay, so relationship between education and democratic politics is as old as democracy itself. Here I'm using this word democracy because it is directly related to education. Okay, out of the politics we are extracting the only word democracy here, because to make you understand the democracy will be the easier term. Okay, now relationship between education and politics is very old, because you will find politics from the time of freedom struggle, as well as from the bottom part you can go back to the British era. You will find that education, how education helped democracy, or how education helped politics in overcoming the problems, right? Now relation between education and democratic is very old. Most of the time the political system is taken as a given, and education conceptualized as an instrument for stability and social instruction or integration. Now see, education always helped the society to make a balance, to make a move, or to go against the Britishers, to go against the corrupted systems and all. So education always help the political system. यहाँ पे क्या होता है, जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो बच्चों को ये शिक्षा देता है कि हमारी क्या बहुत सारे अधिकार हैं, मतलब राइट्स हैं हमारे, और जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, रिलेटेड टू गवर्नेंस, रिलेटेड टू द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब जो है ये उसके बारे में उन्हें सिखाता है। और हम क्या करते हैं, एजुकेशन अगर एक एजुकेटेड हो जाता है तो फिर उसे, यहाँ पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है, नॉट ओनली द पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिक्स मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स लाइक इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस, ठीक है, ये सब जो ब्रदरहुड, ये जो होते हैं ये सब रिलेटेड टू पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, ये सब समझ में आ जाता है इंसान को, उसके बाद वो सोसाइटी में जाके उसे अप्लाई करता है। और अगर कोई भी, आपको पता है कि एक कहावत है, बोला जाता है कि a state और a country without politics is like fish without water। जैसे कि एक मछली जल के बिना नहीं रह सकता है, वैसे ही एक देश जो है वो बिना पॉलिटिक्स के नहीं रह सकता, क्योंकि वहां पे कोई मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग या फिर डिसिप्लिन नहीं पाया जाएगा। और उसे पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है, एजुकेशन करता है, राइट? Now, the educational policies are generally taken by the government in power. Obviously, हमारे जो एजुकेशनल पॉलिसीज होते हैं, अभी एनईपी 2020 ये जो है वो किसने बनाया है, किसका इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है इन पावर। जो पावर में होता है सरकार, वही एक पॉलिसी बना सकता है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू एजुकेशन। सो these two are the relationship between politics and education, right? Now education system needs the support and patronage of the ruling political party. What is patronage? Patronage मतलब बढ़ावा देना। जैसे कि आपको पता है कि अकबर, बाबर, ये जो थे हमारे दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड में, जो भी हमारे स्टडीज होते थे, पढ़ाई होते थे, ज्यादातर मकतब और मदरसा में होता था। हमने इस्लामिज्म में ये पढ़ा हुआ है। मतलब क्या होता है, उस टाइम में इस्लामिक एजुकेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था। और उस टाइम में जो है, जो एजुकेशन सिस्टम है उसे कौन सपोर्ट करता था सबसे ज्यादा, वो है रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी। मतलब कि उस टाइम में जो राजा थे वो लोग उन्हें सपोर्ट करते थे। ठीक है, और अभी का जो सिस्टम है, नीड्स ऑफ द सपोर्ट, मतलब सबसे ज्यादा सपोर्ट हमें किसका चाहिए, रूलिंग पार्टी का। अभी मान लीजिए बीजेपी सरकार जो है अभी सत्ता में है,
अगर बीजेपी सरकार का अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम के और कोई भी उनका सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर एजुकेशन सिस्टम जो है वो दिन ब दिन बदतर हो जाएगा, ठीक है। नो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन सर्वाइव विदाउट द सपोर्ट और द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर। आप सोच लीजिए, एजुकेशन सिस्टम जो है एक साल में हर एक यूनिवर्सिटी से लेकर के प्राइमरी एजुकेशन तक वो जो है फंडिंग कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। अगर वो पूरा का पूरा फंडिंग ये जो सरकार है वो रोक देगी तो फिर जो है इंस्टीट्यूशन है वो चल नहीं पाएंगे और सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो गिर जाएंगे, ठीक है। नाउ इन रिटर्न एजुकेशन क्रिएट्स इंडिविजुअल विथ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। ओके, अभी जो है जो गवर्नमेंट का काम क्या है, वो ग्रांट देता है, वो फंड देता है एजुकेशन को। तो एजुकेशन का भी कुछ फर्ज बनता है गवर्नमेंट के ओर या फिर पॉलिटिक्स की ओर। वो क्या करता है? इट क्रिएट्स इंडिविजुअल्स विथ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। जो स्टूडेंट है, जो बच्चा पढ़ रहा है, उसके अंदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, इक्वालिटी फ्रेटर्निटी के बारे में चाहे हो, चाहे हमारे देश की सरकार, हम पढ़ते हैं ना पॉलिटिकल साइंस में, जो पॉलिटिक्स क्या होता है, उसमें कितने सरकार होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री, इनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये सब हम पढ़ने के बाद हमें एक अधिकार का भी पता चल जाता है। फिर क्या होता है? लेटर वी बिकम रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। उसके बाद हम क्या हो जाते हैं? अगर एक बच्चे को पढ़ा दिया जाएगा ये सब तो फिर वो जाकर के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाएगा, ठीक है। दे ऑल्सो फॉलो द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लाइक डेमोक्रेसी इन द स्कूल। हमारे स्कूल में डेमोक्रेसी, स्कूल में चाहे आप बोल लीजिए या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है, ठीक है। ये आपका खत्म हो गया फर्स्ट बिट, रिलेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। फिर आता है आपका पर्सपेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन। बहुत प्रकार के पर्सपेक्टिव होते हैं पॉलिटिक्स का, ठीक है। फर्स्ट इज द लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन। लिबरल क्या होता है? द वर्ड लिबरल, व्हाट इट डिनोट्स, इसका मतलब क्या होता है? बहुत इजी है। लिबरल मतलब कोई भी चीज का छूट दे देना, ठीक है। लिबरल बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है ये। लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन मतलब ये होता है, इट रेफर्स टू एन एनवायरनमेंट और सराउंडिंग वेयर एवरीवन इज फ्री एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। आपको पता है जो हमारे एलपीजी है, एलपीजी आपको पता ही होगा, आप एजुकेशन में पढ़े होंगे एलपीजी सिस्टम। एलपीजी मतलब क्या होता है? एल फॉर लिबरलिज्म, पी फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन। वेरी गुड, ग्लोबलाइजेशन। ओके, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन पहला जो वर्ड आता है, लिबरलाइजेशन मतलब ये होता है कि हर एक चीज का फ्लेक्सिबिलिटी बना रहे, ठीक है। कोई भी चीज ज्यादा रेस्ट्रिक्शन में नहीं रहेगा, ठीक है। मान लीजिए जो स्टूडेंट है वो अगर क्लासरूम में उसको फ्रीडम नहीं दिया जाएगा अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए, तो फिर वो एक रिजिड सिस्टम बन जाएगा जहाँ पे बच्चा सिर्फ पैसिव लर्नर होके रह जाएगा। अगर उसे हम थोड़ा सा फ्रीडम दे दें, ठीक है, तो वो अपने आप को एक फ्री लर्नर मानते हुए सारे प्रॉब्लम्स को वो शेयर करेगा और जो है बच्चा ज्यादा से ज्यादा लर्न कर पाएगा, ठीक है। तो वेयर देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन दैट इज कॉल्ड एज लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। सिमिलरली इन एजुकेशन, एजुकेशन सेक्टर में क्या होता है? लिबरल एजुकेशन मीन्स empowering individuals and prepare them to deal with complexity, diversity and change। यहाँ क्या बोल रहा है कि लिबरल एजुकेशन मतलब एक जो बच्चा है, स्टूडेंट है, उसे ज्यादा से ज्यादा पावर दिया जाता है ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके आगे जाकर के जो भी उसे फेस करना है। क्या फेस करना है उसे? कॉम्प्लेक्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब होता है भिन्नता, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं उससे डील करने के लिए। और चेंज, आपको पता है कि दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर हमेशा वो चेंज होता ही रहता है। तो जाकर के आगे लाइफ में बहुत सारे जो हडल्स है, जो प्रॉब्लम्स है, उसे फेस करने हैं। और यहाँ पे अगर उन्हें हमें फ्रीडम दे देना है तो वो जाके आगे सीख जाएंगे कि कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया जाए और लाइफ के डिसीजन कैसे खुद लिए जाए, ठीक है। इसका मेन मोटो यही है कि एजुकेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाना, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाना चाहे उसके मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दे देने से क्या होगा? जो लर्नर्स हैं वो अपने जो सेल्फ पेस है, सेल्फ डिटर्मिनेशन है, वो अपने से पढ़ पाएंगे, ठीक है। नाउ
learner is given freedom of choice and freedom of choosing his or her own learning environment। यहाँ पे क्या होता है, अगर उन्हें हम फ्रीडम दे देते हैं तो अपने हिसाब से वो पढ़ेंगे, वो अपने मेथड से पढ़ेंगे, अपने पेस से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव, उसका ठीक उल्टा है, लिबरल का ठीक उल्टा है कंजर्वेटिव। आपको पता है कि कंजर्वेटिव क्या होते हैं? आपको पता है, कभी कभी हम यूज भी कर लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव हैं। कंजर्वेटिव मतलब दोज हु फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स एंड डिसिप्लिन, ठीक है। The people or the politics or the educational system which follows the old principles and discipline in education, they are called as conservative perspectives। समझ में आ रहा है? ये हमने सेकेंड पॉइंट बता दिया इजी करने के लिए। अभी चलते हैं फर्स्ट पॉइंट। conservatism is a political and social philosophy promoting culture and civilization। ये बहुत ही कल्चरल और सिविलाइज्ड पर्सपेक्टिव है, क्योंकि ये मानता है कि ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराना है वो सबसे सही है, ठीक है। कि वही मानता रहता है और ये ओल्ड प्रिंसिपल को फॉलो करता है और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करता है एजुकेशन में। दे बिलीव दैट नो इंडिविजुअल इज परफेक्ट, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। एंड पास्ट इज द बेसिस फॉर आवर सोशल सेंसिटिविटी। मैंने अभी बताया कि पास्ट को वो बहुत मानते थे, ओल्ड को वो बहुत मानते थे। बोल रहा है कि जो पास्ट है, हमारा जो अतीत है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आवर सोशल सेंसिटिविटी एंड ह्यूमन रिलेशन। जो भी है पास्ट में जो हुआ था उससे हमें मान करके आगे बढ़ना है। इट इज क्वाइट सिमिलर विथ द पेरेनियलिज्म। पेरेनियलिज्म मतलब क्या होता था? पेरेनियलिज्म मतलब वो क्या बोलता था? परमानेंसी, जो ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है, परमानेंसी ये सब बोलता था पेरेनियलिज्म जो फिलोसफी है, ठीक है। इट बिलीव्स दैट एजुकेशन शुड ऑलवेज प्रिजर्व द कल्चर, वैल्यू सिस्टम, फेथ एंड लैंग्वेज। एजुकेशन का क्या मतलब काम होता है? क्या क्या काम हो सकते हैं? इसका पहला काम तो ये है कि जो हमारी संस्कृति है उसे प्रिजर्व करेगा, ठीक है। जो कल्चर है वो उसे संभाल कर रखेगा और उसे आगे बढ़ाएगा, और साथ ही साथ वैल्यू सिस्टम को भी आगे बढ़ाएगा। फेथ मतलब विश्वास होता है, वो उसे आगे बढ़ाएगा, और जो हमारी भाषा है, लिपि है, उसे वो आगे बढ़ाएगा, ठीक है। दे बिलीव दैट ओल्ड इज गोल्ड, राइट। फटाफट से आते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। देखिए इसमें ज्यादा हम क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैंने वहां पे बेसिकली आपको ये समझा दिया है कि ये होता क्या है एक्चुअली। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन भी कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछेगा, सीधा सा सवाल है। आपको सिर्फ सवाल पढ़ना है, सवाल को समझना है, और मैंने जो पढ़ा है आपको अंडरस्टैंडिंग दिया है पर्सपेक्टिव के बारे में, उसे अप्लाई करके आंसर करना है, ठीक है। इसमें कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है? ये दोनों से अलग होते हैं। लिबरल एक तरफ है और कंजर्वेटिव एक तरफ है, लेकिन क्रिटिकल बीच में आता है, जो कि मॉडर्न माना जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा मॉडर्न है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। दे आर इट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ द लिबरल एंड कंजर्वेटिव, ये सबसे अलग होता है, ठीक है। while others give more emphasis on practical, critical perspective gives more emphasis on theory। देखिए ये जो पहला वाला दो था, वो क्या बोलता था? लिबरल बोलते थे प्रैक्टिकली, क्या बोलता था कि बच्चा जो है उसे फ्री छोड़ दो, मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। और कंजर्वेटिव जो है वो भी बोल रहा था जो ओल्ड प्रैक्टिसेस है, जो भी हम पुराने जमाने में जो करते आ रहे थे, अभी के टाइम में भी हम वही को दोहराएंगे। मतलब कि जो कंजर्वेटिज्म है वो भी प्रैक्टिकल एबिलिटी पे ज्यादा फोकस देता था, लेकिन जो कंजर्वेटिज्म के बाद आया क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, उन्होंने थ्योरी को ज्यादा एम्फासाइज किया, थ्योरी पार्ट को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। दे गिव मोर एम्फासिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट इन द मोरल चॉइस दैट पीपल मेक। जो हमारे इंसान जो है, जो भी चॉइसेस करते हैं, जो भी हम चूज करते हैं, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोशल कॉन्टेक्स्ट। मतलब मैं एग्जांपल में समझा रहा हूँ आपको। मान लीजिए कि मतलब कि एक आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा कि मतलब कि बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, उस टाइम में एक बूढ़ी औरत है और मतलब कि एक आपका दोस्त है जो मतलब कि उसका तबीयत बहुत खराब है, तो आपको उसके उसे मदद करना है। आपके पास एक स्कूटी है, स्कूटर है, जो भी है आपके पास, लेकिन आप उसमें एक सवारी ले सकते हो, किसी एक को लेके जा सकते हो, तो आप वहां पे क्या करोगे? तो यहाँ पे आपको चॉइस दिया गया, ठीक है, मोरल चॉइस। आप यहाँ पे क्या चूज करोगे? एक बूढ़ी औरत जो है उसे चूज करोगे, मतलब कि उसे अस्पताल तक ले, सॉरी, उसे घर तक ड्रॉप कर दोगे, या फिर आप जो आपके दोस्त को
आप मेडिकल तक लेके जाओगे। तो यहाँ पे आपका मोरालिटी का सवाल आ गया, तो यहाँ पे आप चॉइस क्या करोगे। तो इन्होंने बोला कि आपको वहाँ पे सोशल कॉन्टेक्स्ट मतलब सोसाइटी का जो डिमांड है उसको आप नजरअंदाज मत कीजिएगा और उसको आप मतलब नजर के सामने रख के आप उसे समझाइएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, सोसाइटी का जो डिमांड है उसी के अनुसार आप एक्ट करोगे, ठीक है। तो इस तरह का जो है चॉइसेस जो है आपको रखने होंगे अकॉर्डिंग टू द सोशल कॉन्टेक्स्ट और सोशल डिमांड। सो इट इज बेसिकली रेफर्स टू द थ्योरी ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। ये जो है क्रिटिकल थ्योरी जो है इन्होंने थ्योरी पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, इसलिए इट इज थ्योरी ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। नाउ आपका आता है फिर अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स। अप्रोचेस में क्या क्या आते हैं आपके, बिहेवियरलिज्म आता है, थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस आता है और थ्योरी ऑफ रैशनल चॉइस आता है। फर्स्ट इज बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म बोलिए या फिर बिहेवियरलिज्म बोलिए, जो भी है सेम ही है, क्योंकि आप साइकोलॉजी में पढ़े हैं बिहेवियरिज्म क्या होता है, उसके फादर कौन है, जेबी वॉटसन है उसके फादर, ठीक है। और कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन है, ईएल थॉर्नडाइक है, पावलोव है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे थ्योरिस्ट हैं जो कि बिहेवियरिज्म के फादर रहे हैं। और यहाँ पे बस सेम ही है, बस आपका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, वहाँ पे आपका साइकोलॉजी था और यहाँ पे आपका पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इट बिलीव्स इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ऑब्जर्वेबल मतलब जो हम देख सकते हैं, जो हम फील कर सकते हैं, वो बिहेवियर, ठीक है। इंटरनल बिहेवियर नहीं, जो आपको सामने आ, ठीक है, जो आप फील कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिक्स डिनोट्स दैट इट इज एन अटेम्प्ट, ये क्या है, एक अटेम्प्ट है टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ बाय मीन्स ऑफ मेथड्स, theories, criteria of proof that are acceptable according to the assumptions of modern empirical science। यहाँ पे एक लंबा सा डेफिनेशन जिसमें पूरा बिहेवियरल अप्रोच को बता दिया गया है। यहाँ पे देखिए हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल डिनोटेशन है बिहेवियरिज्म का, वो बोल रहा है कि हमें क्या करना है इसमें, टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो सोच है उसे इम्प्रूव करना है, ताकि हाँ किससे हम इम्प्रूव करेंगे, बहुत सारे मेथड अप्लाई करेंगे, बहुत सारे थ्योरीज को पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करेंगे, और वही अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करेंगे जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो अकॉर्डिंग टू द एजम्पशंस, जो हमारे एजम्पशंस है उसे हम अडॉप्ट करके हमारे अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ ये कॉन्सेप्ट है क्या। यहाँ पे बोल रहा है जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, बच्चा जो बिहेव कर रहा है, जैसे बिहेव कर रहा है, उससे ही हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। किससे चेंज करेंगे, बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे थ्योरीज उसे पढ़ाएंगे, जिसके चलते उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। और ये बिहेवियर किसके लिए चेंज होगा, बिहेवियर टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, ठीक है, और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ठीक है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, ये इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे थ्योरीज और मेथड से बच्चे को पढ़ाएंगे, और वो जाकर के अपना पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो अपना चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका बिहेवियरलिज्म, ठीक है। नाउ आता है थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस। देखिए सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, इसका जो मतलब फाउंडर है डेविड वॉटसन है, जो कि पहली बार इसे यूज किया है सिस्टम एनालिसिस को, ठीक है। एनालिसिस तो आपको पता ही है, ये एक थिंकिंग, एक कॉग्निटिव अप्रोच है, ठीक है, जहां पर आपको दिमाग लगाना है। ही सेड दैट political system is an interaction in any society through which authoritative and building allocation of values are made। यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन किसके बीच होगा, पॉलिटिक्स के बीच या फिर एजुकेशन और सोसाइटी के बीच में होगा। थ्रू विच ऑथोरिटेटिव एंड बिल्डिंग एलोकेशन, मतलब ऑथोरिटी, मतलब ऑथोरिटी वो होता है जो पावर में होता है, ठीक है, जिसको पावर दिया जाएगा। एलोकेशन ऑफ वैल्यूज आर मेड, कौन पावर में आएगा, कौन वैल्यूज एलोकेट करेगा, वो हम डिसाइड करेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए आपने जो इलेक्शन में वोट दिया होगा, तो इलेक्शन में आप वोट देने से पहले अच्छे से एनालाइज करते हैं सिस्टम को, कि इंडिया का सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, उसमें अब सबसे ज्यादा हम किससे मतलब किस पार्टी पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, और उसी को आपने जाकर के अपना वोट दे दिया, ठीक है। तो आपने अपना अथॉरिटी, अपना लीडर जो है आपने खुद चूज किया। यू हैव टू चूज योर ओन रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द इलेक्शन।
तो आपने क्या किया, उसको चूज किया और जो है वो लोग जाकर के आगे वैल्यू आपके लिए बनाएंगे, ठीक है, वैल्यू या फिर रूल आप जो भी बोलिए वो आपके लिए बनाएंगे। समझ में आ रहा है? इट इज द यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इंट्रा सिस्टम। देखिए इंटर सिस्टम ये आपको अच्छे से पता होगा साइकोलॉजी से। इंटर सिस्टम होता है कि सपोज ये प्रीति है और ये है दीपिका और ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ। तो आप लोग मेरे साथ जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये जो इंटरेक्शन चल रहा है ये है इंटर सिस्टम, इसीलिए उसे बोला जाता है इंटरएक्शन, ठीक है, ये है इंटर, ये होता है इंटर। लेकिन अगर प्रीति अपने आप से बात कर रही है, ठीक है, या फिर दीपिका अपने आप से बात कर रही है, तो फिर हो गया वो इंट्रा, ठीक है। इंटर मतलब किसी दूसरे के साथ और इंट्रा मतलब अपने साथ, मतलब खुद ब खुद आप अपने से बात कर रहे हो, तो वो है इंट्रा सिस्टम। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंट्रा सिस्टम बिहेवियर मतलब जो पॉलिटिक्स और सोसाइटी है उनका तो इंटर रिलेशन हो गया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इंट्रा सिस्टम अपने सिस्टम के अंदर जाकर के कॉन्सेंट्रेट करेंगे और एनालाइज करेंगे कि सिस्टम को चाहिए क्या। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपको चूज करना है कि हम जो इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन में वोट देंगे, तो वो किस पार्टी को देंगे, ये हम इंटर सिस्टम एनालाइज करेंगे। उसके बाद हमारा वोट जो देंगे अपने आप से एक बार पूछेंगे कि किसको वोट देना है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन फ्रेमिंग प्लान, अभी मैंने बताया कि प्लान करने के लिए इसे यूज किया जाता है, कंट्रोल करने के लिए और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसे यूज किया जाता है। अच्छे से समझ लीजिए, क्रिटिकल जो थ्योरी है रिलेटेड टू सिस्टम एनालिसिस, ये मतलब कुछ रिलेटेड है क्रिटिकल एनालिसिस से, ठीक है। सिस्टम एनालिसिस मतलब आपको पूरा सिस्टम एज ए होल आपको एनालाइज करना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना दोनों को? यस यस सर। सर। ओके, कोई भी डाउट हो एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी लास्ट में आता है आपका थ्योरी ऑफ रैशनल चॉइस। यहाँ पे देखिए, रैशनल का मतलब ही होता है कि ह्यूमन बीइंग आर रैशनल बीइंग्स, मतलब उनके अंदर एक रीजनिंग पावर है जो राइट और रॉन्ग के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर सके, ठीक है। रैशनल मतलब समझ में आ रहा है ना कि आपको ये मतलब जो क्या है बोलते हैं उसे, रैशनल मतलब रीजनिंग पावर होता है। हम वो पावर लगा के हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत। हमारे पास रैशनल पावर है, एनिमल्स के पास वो नहीं है, ठीक है। इसीलिए वो लोग, उन्हें खाना चाहिए तो वो खा लेते हैं, उसमें ये नहीं देखते हैं कि ये करने से सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो रैशनल चॉइस मतलब सोच समझ के हमें चॉइस करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, it suggests that individuals rely on rational calculations to achieve outcomes that are in line with the personal objectives। देखिए हमारे बहुत सारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब लाइफ में एम होता है, ठीक है। आपका बहुत सारा एम है, ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है लाइफ में, हमें जा करके आगे प्रोफेसर होना है या फिर एक टीचर होना है, जो भी है आपने एम रखा है लाइफ में, ठीक है। आपने जो ये एम रखा है इससे आपने सोच लिया कि मुझे ये अचीव करना है, ठीक है। तो अचीव करने के लिए आपने क्या किया, एक रैशनल कैलकुलेशन लगाया। रैशनल कैलकुलेशन मतलब अच्छे से सोचा इसके बारे में कि हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सोचने के बाद आपने पहले ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अभी आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये करने से मुझे क्या मिलेगा, अपना जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है या फिर आपका एम है वो आपका अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपने जो है रैशनल तरीके से सोचा, अच्छे तरीके से सोचा, ना कि जो जैसे मतलब इंसान सोचते हैं वैसे सोचा, ना कि जानवर जैसे सोचते हैं वैसे सोचा, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब ये है, हमारे अंदर फीलिंग्स है, हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। दिस डिसीजन गिव पीपल द ग्रेटेस्ट बेनिफिट। हाँ, ये तो होना ही है, क्योंकि ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सिर्फ इंसानों के पास होता है और किसी के पास नहीं होता है। इसीलिए इंसान सबसे ऊंचा माना जाता है, सुप्रीम क्रिएचर ऑफ गॉड बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट बेनिफिट, पावर, सेटिस्फैक्शन जो आप बोल सकते हो, हमारा सबसे बड़ा मतलब बेनिफिट क्या है इंसान होने का, यही है कि हम जो भी सोचते हैं वो रैशनली सोचते हैं, अच्छी तरीके से हम सोच लेते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपने ये सुना होगा कि तू इंसान है कि जानवर है, ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा काम करता है कि कोई गंदा काम करता है तो हम बोलते हैं कि तू इंसान है क्या
जानवर है, क्योंकि वो इंसानों की तरह नहीं सोचा, इसलिए उसे जानवर बोला जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज रैशनल एक्शन थ्योरी। रैशनल एक्शन थ्योरी इसलिए बोला गया है कि हम जो भी एक्ट करेंगे, काम करेंगे, वो मतलब कि रैशनली करेंगे, राइट। अभी आपका लास्ट 2 बुलेट है, जो कि है एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता है, पहले ही मैंने बता दिया था कि एजुकेशन जो है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए और सोशल डेवलपमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल होता है, ये आपको जनरली पता है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द नोशन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज असिस्ट एट द इंडिविजुअल लेवल by education where they express their needs and desires। यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, आप सोचिए कि एक देश का जो है पॉलिटिक्स है, या फिर पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है, गवर्नेंस सिस्टम। पॉलिटिक्स आप पॉजिटिव मतलब तरीके से सोचिए है, तो पॉलिटिक्स क्या होता है, हम यहाँ पे मतलब जो है पार्टी सिस्टम को नहीं ला रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ सोच रहे हैं कि पॉलिटिक्स होता क्या है। पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिक्स एक गवर्नेंस सिस्टम होता है। और गवर्नेंस सिस्टम क्या होता है, गवर्नेंस सिस्टम वो होता है जो हमारे देश में एक बैलेंस बनाए रखता है। देश में जो भी हो रहे हैं, मतलब सुबह से लेकर रात तक जो भी हो रहे हैं, गवर्नमेंट, पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो भी है, ये सब जो मैनेज कर रहा है वो कौन कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। ठीक है, हम ये सोचेंगे पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है, अभी ये जो पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें आते हैं, ठीक है, ये सबको समझने के लिए एक जो स्टूडेंट है उसका भी पॉलिटिक्स समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आगे जाकर के क्या पता वो भी एक पॉलिटिशियन बन सकता है, एक देश का जो बोलते हैं ना, एक सिटीजन होगा ना वो आगे जाकर के। हम लोग क्या है, एक भारतीय मतलब नागरिक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं। तो एजुकेशन क्या करता है, एजुकेशन एक इंसान को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपना जो राइट्स है, अपने जो ड्यूटीज हैं, उनको निभाने का हक बनता है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, ये सब वो समझ जाता है, उसके बाद जाके देश की सेवा में अपने आप को निश्चित कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए हमें एक इंडिविजुअल जो है, एक बच्चा है, उसका मतलब क्या क्या डिजायर्स हैं, नीड्स हैं, उनको हमें पता लगाना है, उनका पॉलिटिकल नोशन क्या है। वो सपोज मान लीजिए यहाँ पे प्रीति है और यहाँ पे दीपिका है, मुझे ये समझना है कि दोनों का अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स के लिए क्या क्या है। ठीक है, दोनों को मैंने पूछा, उसके बाद मुझे पता चला कुछ, ठीक है, कुछ फैक्ट्स पता चले, उसके मतलब उसको नजर में रखते हुए अकॉर्डिंगली मैं आप दोनों को एजुकेशन दूंगा। ठीक है, तो वहां पे भी क्या होता है, स्टूडेंट्स के नीड और डिजायर को मतलब आंखों के सामने रखते हुए वो लोग एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करते हैं, और एजुकेशन प्रोवाइड ऐसे करते हैं जैसे उनका एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जाए, पॉलिटिकल नोशन मतलब पॉलिटिकल जो बोलते हैं पर्सपेक्टिव, कंसर्न एक डेवलप हो जाए। ठीक है, एट द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एजुकेशन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था हमारे देश में, जो कि 1947 में खत्म हुआ था, और इसमें आपको पता है बहुत सारे राइटिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाए थे। ठीक है, राइटिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों के जो राइटिंग्स है, थ्रू एजुकेशन उन्होंने सब तक पहुंचाया था, और उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करके बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लॉयर्स, बहुत सारे जॉब्स होल्डर्स अपना जॉब, अपना एजुकेशन छोड़ के फ्रीडम स्ट्रगल में अपना योगदान दिया था, और उन्हीं के वजह से आज हम फ्रीडम है। ठीक है, तो सो वी कैन कंक्लूड दैट एजुकेशन ऑलवेज हेल्प्स अ कंट्री इन रूलिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग विथ पॉलिटिक्स। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं एजुकेशन जो है वो एक सच्चा नागरिक बनाता है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है, और वो जाकर के देश को रूल करने के लिए हेल्प करता है, और कंट्रोल करने के लिए, देश को कंट्रोल करने के लिए वो हेल्प करता है थ्रू पॉलिटिक्स। ठीक है, द लास्ट पॉइंट इज एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन। आपको ये भी पता है सोशियोलॉजी में आपको मतलब पढ़ाया गया होगा कि एजुकेशन और एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी का एक पार्ट है एजुकेशन। एजुकेशन जो दिया जाता है बच्चे, जो भी बच्चा पढ़ता है, उसे क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसे हम सोशलाइज करने के लिए बनाए, मतलब कि
जो स्टूडेंट है हमें उससे सोसाइटी के बारे में पढ़ाना है, सोसाइटी के नॉर्म्स के बारे में पढ़ाना है, सोसाइटी के कल्चर के बारे में पढ़ाना है और उसे सोशलाइज करना है, ठीक है। इट रेफर्स टू द वेज इन विच पीपल acquire values, opinions that shape their political ideologies। यहाँ पे एजुकेशन क्या करेगा, जो इंसान है उन्हें बहुत सारे वैल्यूज के बारे में, ओपिनियंस के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। और वो जा करके आगे फ्यूचर में उनका एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। द मेन इनिशिएटर्स और फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। जो है सोशलाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन है, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका फैमिली। ये कैसे है एक फैक्टर, क्योंकि सोशलाइजेशन बिगिंस फ्रॉम योर फैमिली। आपका फैमिली जैसा होगा आप भी वैसे ही होगे, क्योंकि अगर आपके फैमिली मतलब फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं और आपको बहुत प्यार देते हैं, बहुत अच्छा जो है आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वैल्यू सिखाते हैं, तो आप भी आगे जा करके एक अच्छा इंसान बन सकते हो। अगर आपके फैमिली में कोई नहीं है और जो भी है वो अपने काम में बिजी रहते हैं और मतलब कि गाली गलौज करते हैं या फिर वो आपको ठीक से बिहेव नहीं करते हैं, फिर आगे आप जाके एक नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप जाकर के क्या करोगे, उसी तरीके का आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं स्कूल की तरफ। फैमिली के बाद तो स्कूल ही आता है, जहाँ पर हम जाके बहुत सारे टीचर्स से मिलते हैं, बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं। हम हमारा एक स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट के बीच एक बॉन्डिंग बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम बहुत कुछ सीखते हैं सोसाइटी के बारे में। वहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि सोसाइटी में कौन कौन रहते हैं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमें कैसे बिहेव करना है एल्डर्स के साथ और जो है जूनियर्स के साथ, ठीक है। उसके बाद आता है पीयर ग्रुप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। आपका जो है फ्रेंड सर्कल, आपके दोस्त जैसे होंगे आप भी वैसे होंगे। आप अगर मतलब क्या बोलते हैं उसे, सज्जन के साथ रहोगे तो आप भी सज्जन होंगे, ठीक है। अच्छे आदमी के साथ रहोगे तो फिर आप अच्छे बनोगे, या फिर आप बुरी संगत में आ गए तो फिर गए काम से, ठीक है। फिर आता है मास मीडिया। आजकल तो इसमें ही ये तो सबसे ज्यादा चल रहा है। सोशलाइजेशन के लिए मास मीडिया जो है वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करती है। आपको टीवी, न्यूज़पेपर, ठीक है, जो भी आप देखते हो, या फिर आप आजकल तो वैसे भी चल रहा है ऑनलाइन मीडिया सब चल रहा है, ठीक है। ऑनलाइन में जो भी आप देखते हो इसके द्वारा ये एक मीडियम है, ठीक है। ये आपको सोशलाइज करवाता है कुछ हद तक, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी ज्यादातर टीवी देखते हैं या फिर जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें ज्यादातर आपके सोसाइटी के बारे में लिखा जाता है और उसी को पढ़कर हमारा जो आइडियोलॉजी है वो उसी सोसाइटी के जैसा बन जाता है। जैसे कि आप भारत में आपका जन्म हुआ और आप हर रोज टीवी देखते हो और न्यूज़पेपर देखते हो, तो आपका जो है माइंड जो है, आपका बिहेवियर जो है वो कुछ भारतीय बन जाएगा, ठीक है। अगर आप अमेरिका में होते तो शायद आपका कुछ डेवलप थिंकिंग होता है, ठीक है। अभी चलते हैं लास्ट पॉइंट। थ्रू एजुकेशन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एज वेल एज द व्यूज ऑफ द जनरेशन कैन बी चेंज। आपको ये सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। एजुकेशन जो है, थ्रू एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन एक ही रास्ता है जिससे हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं एज वेल एज द व्यूज ऑफ द जनरेशन। हमारे जो जनरेशन ऑफ लर्नर है, ये जो अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी मतलब पढ़ने जा रहे हैं, उनका जो है उनके दिमाग में हम एक चेंज ला सकते हैं टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स के लिए हम उनके दिमाग में कुछ चेंज ला सकते हैं और वो चेंज कौन लाएगा, एजुकेशन लाएगा, ठीक है। थ्रू एजुकेशन हम पढ़ाई में ही उन्हें बहुत सारा कुछ चीजें सिखा सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल हियर। जो सोशलाइज करना चाहे आप सोशलाइज करो, चाहे उन्हें क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट बारे में सिखाओ, चाहे आप वैल्यू सिस्टम सिखाओ, चाहे आप कल्चर सिखाओ, जो भी आप सिखाओ, एजुकेशन जो है वो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल जो है वो निभाता है, ठीक है। एजुकेशन ऑलवेज motivates the learners, always changes, or the you can say that always change the behavior of the individual towards politics, ठीक है। पॉलिटिक्स के तरफ उनका जो व्यू पॉइंट है उन्हें चेंज करता है, ठीक है। सॉरी ये वाला गलत है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एनी डाउट?
No, sir. No doubt, sir.